Welcome to class 12th, chapter 4th of History, Thinkers, Belief and Buildings. Cultural development between 600 BC to 600 AD. Actually, dear student, in this chapter we will discuss the major religious development in early India, and especially we will focus on Buddhism. We will also examine how these religious ideas were compiled as text and reflected in architecture as well as sculpture. Dear student, as you know, history is the study about our past, but based on sources. So let us discuss first about sources. So if we talks about sources, Buddhist literature, Jaina and Brahminical texts are provide information about the cultural development of these 12 years, 1200 years, from 600 BCE to 600 AD. Apart of that, the material remains, including monuments and inscriptions, also help us to understand the cultural development of these 1200 years. So actually, it was during the period that thinkers such as Zarathustra in Iran, Kongzi in China, Socrates and Plato, and Aristotle in Greece. If we talk about Asia or especially India, so Mahavir and Gautam Buddha in India emerged. Basically, these philosophers और these wise men और we can say जिन्होंने एक धर्म का एक नींव डाला, these peoples emerged in these 1200 years and they tried to understand the mysteries of existence and relationship between the humans and cosmic order. इन्होंने ये जानने की कोशिश किया था बच्चों कि बेसिकली लाइफ का जो ट्रूथ है वो क्या है, वैल्यू ऑफ द लाइफ क्या है, ये जानने की कोशिश किया. इसके बारे में बेसिकली हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. स्पेशली वी विल ऑल्सो पे अटेंशन ऑन स्तूपा ऑफ सांची दैट वाज सिचुएटेड इन सांची कानाखेरा इन भोपाल, नियर बाई भोपाल, मध्य प्रदेश. उसके बारे में डिस्कस करेंगे. दीज आर दी, यू कैन सी, दीज आर स्तूप्स. ये स्तूप है, आप इसे देख सकते हैं. इस सब के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. बट फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट बैकग्राउंड एज आई हैव डिस्कस अबाउट background ki how new ideas emerge in these 1200 years. And they have a Indian have or the ancient people have different kind of sacrificial traditions. So the Ring Veda was compiled between 1500 BCE to 1000 BCE. तो इन 500 सालों में 1500 से लेके 1000 BCE तक ऋग्वेद का कंपाइलेशन वर्क होता है. नाउ Agni, Indra and Soma were getting special attention. इन्हें लोग ज़्यादा इनकी वर्शिप करना शुरू कर देते हैं. The sacrifices earlier were performed collectively and later during 1000 BC to 500 BC onwards, some were performed by heads of household for well-being of the domestic unit. पहले बच्चों क्या होता था कि एक साथ कलेक्टिवली ऑफरिंग्स दी जाती थी, चढ़ाई जाती थी या यज्ञ वगैरह होता था. बट हम देखते हैं कि कुछ बदलाव आता है और उसमें अब जो हाउस होल्ड का हेड होता था वो फैमिली की वेलबींग के लिए एक कलेक्टिवली ऑफरिंग्स का जो
इंतजाम है या वो कहें कि चढ़ाना होता है, वो क्या था। एंड मोर एलेबरेट सेक्रीफाइसेस सच एज राजसोया अश्वमेध वर परफॉर्म बाय द chiefs and the kings. They were totally depend on Brahma priest and to conduct the rituals. ये हमने अभी तक डिस्कस किया था इस क्लास में कि राजसूय और अश्वमेघ नाम के दो यज्ञ किए जाते थे राजाओं और चीफ्स के द्वारा किए जाते थे. If we talks about this was the phase when new questions emerge. Many peoples were curious about meaning of life. बहुत सारे लोग जीवन के सच के लिए, उसके महत्व के लिए, वैल्यू के लिए जानना चाहते थे. They were also looking the possibilities of the life after that rebirth. Basically these were three questions. They were hotly debated, जिन पे बहुत सारे डिबेट्स हुआ कि क्या इज़ देयर एनी लाइफ आफ्टर डेथ, क्या लाइफ के बाद का भी कोई कॉन्सेप्ट है. ऐसे सवाल इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं ग्लोब पर या कहें हम वर्ल्ड में. एंड पीपल आउटसाइड द वैदिक ट्रेडिशंस आस्क्स वेदर देयर वाज इवन अ सिंगल अल्टीमेट रियलिटी, क्या कोई सच में एक सच है, और इफ़ देर आर मैनी ट्रूथ्स, बहुत सारे सच हैं. एंड पीपल ऑल्सो बिगेन स्पेकुलेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्रीफाइसल ट्रेडिशंस. जो यज्ञ किया जाता था उसका पीछे की अवधारणा क्या थी, इस पे भी लोग सवाल करना शुरू कर देते हैं, इस पे भी सवाल करना शुरू कर देते हैं. एंड डिबेट एंड डिस्कशन कुटगारशाला पे होना शुरू हो जाता है. देर वर एज मैनी एज 64 सेक्ट्स और स्कूल्स ऑफ थॉट. ऐसा माना जाता था कि बुद्धिज़्म के 64 सेक्ट्स हैं. And they lively discussion and debates what took place between the teachers and the followers and the school of thoughts. different लोगों के बीच में डिस्कशन होता था. And कुटगारशाला were the place where the debates of teachers who tried to convince one another were happen. इनमें कुटारगारशाला में डिस्कशन होता था. महावीर एंड बुद्धा क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द वेदा. महावीर स्वामी और बुद्धा ने सवाल उठाना उनकी अथॉरिटी पे शुरू कर दिया था. एंड दे वर एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल एजेंसी. उनका मानना था कि इफ़ यू वांट टू गेट फ्रीडम फ्रॉम योर ओन प्रॉब्लम यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मीडिएटर. योर ओन एफर्ट कैन गेट फ्री फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स. आपका अपना एफर्ट्स आपको आपकी समस्या से छुटकारा दिला सकता है, ऐसा मानना था महावीर स्वामी और बुद्ध जी का. If we talks about how Buddhist texts were prepared and preserved, so actually in the life of Buddha's teachings never compiled in written form. बुद्धा की बात करते हैं हम तो उनके जीवन में कभी भी उनकी टीचिंग्स को रिटन फॉर्म का रूप नहीं दिया गया था. They mainly spread their teachings through discussion, through debates, and women and men and children were allowed to attend any kind of discussions of Buddha. अपनी शिक्षाएं उन्होंने डिस्कशन डिबेट्स के माध्यम से लोगों तक दी और महिला पुरुष बच्चे सब उस डिस्कशन का एक पार्ट्स बन सकते थे. एंड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर कंपाइल्ड इन अ टेक्स्ट. द नेम ऑफ दैट टेक्स्ट इज त्रिपिटक के नाम से उसे जाना जाता है और इट हैज़ 3 पार्ट्स. त्रिपिटक का भी 3 पार्ट्स है बच्चों, जिसको हम विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक के नाम से जानते हैं. किसके नाम से जानते हैं? विनय पिटक, सुत पिटक एंड अभिधम पिटक के नाम से जाना जाता है. What were the messages of Jain Guru Mahavir Swami? The message of Mahavir Swami's basic idea of Jain philosophy. महावीर स्वामी के जो आइडियाज़ हैं वो ही जैन धर्म का फिलॉसफी का बेसिक आइडियाज़ हैं. एंड महावीर वॉज प्रेसिडेड बाय 23 तीर्थंकर्स. उनके
23 तीर्थंकर्स हुए थे, एंड द तीर्थंकर्स आर टीचर्स. Actually, who were Tirthankars? So, Tirthankars are the teachers who guide men and women across the river existence and the main teachings of Mahavir Swami. बच्चों, जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी के 23 तीर्थंकर थे जिन्होंने लोगों को महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी उनके बारे में बताया. If we talks about teaching of Mahavir, so these are the teachings of Mahavir Swami. The entire world is animated. Even stone, rock and water have life. उनका मानना था कि पूरा संसार एनिमेटेड है और सभी के अंदर जीवन है. And no injury of living being, especially to humans, animals, plants and insects. हमें किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए, किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स को. एंड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप थ्रू कर्मा. उनका मानना था कि जो आपका लाइफ का बेस है वो आपके पिछले पास्ट लाइफ का कर्मा था या एक्शंस था. ये उनकी टीचिंग्स के कुछ खास पॉइंट्स थे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और डिटेल से क्लास में. हाउ द टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म और महावीर स्वामी स्प्रेड. सो द टीचिंग ऑफ महावीर वर रिकॉर्डेड बाय हिज डिसाइपल्स. अगेन लाइक बुद्धा, teachings of Mahavir Swami were recorded by his disciples. बुद्धा की नाई महावीर स्वामी के शिष्यों ने इनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया था, रिकॉर्ड किया था. These were in the forms of stories. ये स्टोरीज के फॉर्म में थे, विच कुड अपील टू ऑर्डनरी पीपल्स, जिसे सामान्य लोग, ऑर्डनरी पीपल्स भी पढ़ सकते थे, जान सकते थे. जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस सच एज Prakriti, Sanskrit and Tamil, and they are preserved in libraries attached to the temples. हम बात करते हैं बेटा बहुत सारा रिटेन लिटरेरी सोर्सेस है हमारे पास जानने का जैन धर्म का, और इनका जो लैंग्वेज है वो है प्राकृति, संस्कृत, तमिल. दे आर ऑल preserved in libraries. Libraries were attached to the temples, and gradually Jainism spread to the many parts of the country like India. भारत के बहुत सारे मुल्कों में बहुत जल्दी महावीर स्वामी की टीचिंग्स फैलना शुरू हो जाती हैं या फैल जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट Jainism. We will discuss in next video about the Buddha and his teachings and the idea of his enlightenment. ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, दैट्स फॉर टुडे.